Good afternoon, everyone, and welcome to this webinar organized by PCC. The Punjabi Chamber of Commerce is a non-profit organization with a close-knit structure, has a mission and enrich the global Punjabi and Asian community with commerce, culture, and community. Aptly founded on three practices: cooperation, creativity, and communications. PCC was founded in 2017 when members of the Punjabi diaspora community in the United States got together and felt the need to organize themselves in an institutional approach to bring more force and purpose to the community. We are strictly non-partisan, non-political, and non-religious. PCC has a wide network of 3,000 plus members spread across 5 continents. Today, we are presenting our webinar on startup boosting entrepreneurship. Startups are new businesses that intend to grow large beyond the solo founder. The objective of this webinar in the field of startup is to guide everyone who wants to be entrepreneur along with the advantages, scalable and repeatable business model. Also, how to develop small-scale business, discussion on how to boost entrepreneurship. With this background, I now would like to introduce our speaker for today, Mr. Karan Arora, founder, CEO, and chief data scientist, Itronic Solutions. He's also an international speaker and business coach. So please, now over to you. So thanks a lot for introducing me. So you already introduced me, right? My name is Karan Arora. I'm the serial entrepreneur. So I have built 3 startups. One is Itronic Solutions, so which is an IT company. One is the digital marketing company, which is a Digital Adda. And also we are into EdTech company. And so today's the main topic is about how to boost the entrepreneurship. So I'll cover each and everything in details, like what actually entrepreneurship, what people think about entrepreneurship, how to build your business from scratch, how to build your business without any money, how to build your business profitable. So there are n number of challenges you will get while you are entering into in the business field, or if you are planning to build a startup. So what challenges you people will face. So I'll try to discuss each and everything in details. So first thing is the team. So team is very important to build the startup. So what kind of persons are required to build a startup? So first, an entrepreneur, definitely you will be the founder. And if you are going to start a startup, so the main visionary behind the startup is who conceive the business idea, identify the opportunities, and take the lead in the execution. So founders basically play a multiple roles and responsible for setting the strategic and direction of the startup. So next is the co-founder, right? So co-founders are not necessarily that you will need a co-founder to build a startup, but most of the, you can say that 90% of the companies which are unicorn companies, they have the co-founders. So 10% of companies are still there, like they are totally, you can say with a single founder, they are running a very good business, right? So co-founders are individuals who join the founders in building the startup. So they bring the complementary skills, their expertise, and the resources to the venture, or sharing the responsibilities and the contribution to the various aspects of the business. So the third thing is management team. So management team is also very important to build a startup, because they will handle your operations, they will handle your finance, they will handle the marketing, and they will manage the product development. So for everything like operations, finance, marketing, and product development, so management team is must
required because they are responsible for executing the strategic vision and managing your day-to-day operations. So the next is the technical experts. So depending on the nature of the startup, so technical experts such as either software developers, web developers, mobile app developers, data scientists. So many technical experts are required to build a startup. Like if you are developing any product, then definitely you will sell your product on any website or any mobile app, and definitely you will market your product. So for that, you need those technical experts who can help you to build your web app, mobile app, and softwares, and also they will market your product as well. So they are crucial for developing and maintaining the core product or the technology. So the next is advisor or mentor, because sometimes you will not enough to see the opportunities, right? So you need some guidance, you need some mentorship. So experienced advisor and the mentors can provide you the guidance. They will provide you the industry knowledge and the valuable insights to help steer the startup in the right direction, right? So they have expertise in specific area and relevant to the startup industry, or you can say the market. So next, employees. So without employees, you can't grow your business, right? So as a startup grows, you need to hire your employees to support the various functions and operations. So these can include either sales, marketing professionals. So it all depends upon the startup needs, right? So you need multiple employees who can handle your sales, marketing professional. You need customer support representatives. You need designers, and you need to other team member. And the last is investors. So definitely after some time, you need some money. So you will definitely raise some money from investors, some angel investors or venture capitalists, or might be from other resources. You will raise your funds, right? So investor provide the capital and may also contribute to strategic guidance and your industry connections. So these are the basic things, right? So for any startup, at least you need founders, maybe co-founders, management teams, technical experts, advisors, mentors, and employees. So without these people, we can't start a startup. So first thing must be clear, and actually the startup is, because nowadays startup is just like a very fancy word. Everybody wants to go into this startup field, even though they don't know how actually the meaning of startup is. Everybody just want that they want to start a startup. Even they don't have the entrepreneurship mindset, they don't have any skills, but still they want to start a startup. And 90% of the startups, you can say, they fails very instant, within a 2 months or within a year. You can say more than 50% startups closed. Because why? They just want to start the startup without even knowing what actually startup is. So what is happening, like if I talk about, you can say, if a person is doing a job in a company, so he has to work for a couple of hours. So he has to work from Monday to Friday. So an employee works from Monday to Friday, and he is saying that his friend is doing startup and he's earning a lot, and I also want to start a startup. So what they are, without thinking anything, they are just quitting their jobs and they are just building a startup, right? So before they actually works for 9 to 5, they work for 9 to 5. So 9 to 5, they work from Monday to Friday, right? So when they start a startup, then there is no any time limit. Time limit is totally zero, because you have to work for either 24 hours, either 20 hours, 18 hours, because normally an entrepreneur works for more than 18 hours. And average, we can say that more than 70% of the entrepreneurs works more than 18 hours, right? So before that, they are just work for, they're just doing their 9 to 5 jobs. And right now they have to work for more than 18 hours. And even though every day is a Monday, earlier they are doing a job from Monday to Friday. So their mindset was not clear. They're just saying that, okay, fine, entrepreneurship में जाएंगे, पैसा भी बनेगा, and just we have to work from Monday to Friday. और entrepreneur का काम क्या करना होता है? कुछ भी नहीं करना, इधर उधर उसको घूमना है बस. But they actually don't know what actually the entrepreneurship is, right? So entrepreneurship के लिए you need an entrepreneurship mindset.
एंड आपको ये माइंड से हटाना पड़ेगा लाइक कि 2 घंटे 5 घंटे 8 घंटे से कुछ नहीं होने वाला, आपको 18-18 घंटे काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क फॉर मोर देन 18 आवर्स, एंड उसके लिए आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, डोंट हैव एनी टाइम लिमिट, आपका एवरी डे इज और मंडे। सो ये चीज आपको पहले माइंड से क्लियर कर देनी चाहिए कि यहाँ पे आपका कुछ भी आप ये मान के समझते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में कभी नहीं आ सकते। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट अगर आप दिन में 18 घंटे 16 घंटे काम करने के लिए रेडी हैं, देन यू कैन गो फॉर स्टार्टअप, अदरवाइज जॉब आपके लिए बेस्ट है। सो नेक्स्ट इज व्हाई स्टार्टअप फेल्स टू ग्रो। बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट हो जाते हैं एंड लेकिन आफ्टर दैट दे फेल्स, राइट? सो द फर्स्ट इज द मार्केट गैप एंड साइज। सो मेनी पीपल डजंट नो अबाउट द मार्केट. So what is the market gap and what is the market size? So if you have the supply is more and you can say the demand is more and the supply is less, so that means there is a market gap. So you need to fill that market gap. So अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन वो मार्केट में मिल नहीं रही है, तो डेफिनेटली वो चीज की इतनी डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी सप्लाई अगर कम है तो वो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बहुत महंगा बिकेगा। सो फर्स्ट हमें ये चीज देखनी है कि मार्केट का गैप क्या है, मार्केट का साइज क्या है। सो व्हाट market you are actually targeting, because what will happen, like we are target the wrong market product and we are targeting the wrong people, right? So हमें ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट का साइज जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा मार्केट का साइज होगा उतना बड़ा आप एक बिजनेस बना सकते हो। अगर मार्केट साइज बहुत छोटा है तो आप कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। बड़ा बिजनेस बनाने के लिए मार्केट का साइज भी उतना बड़ा होना चाहिए। So to build a big business, you need a big market size. For example, like I started my company, a tech company in Punjab. So one office I started in Jalandhar, and one office I started in Mohali, and we are totally into offline market. So offline market, what will happen? There is a limited market size. So for the edtech, we are just targeting the students who are doing engineering, who are doing the PhDs. So मार्केट साइज इज वेरी लेस। सो व्हाट विल हैपन, जैसे ही कोरोना आया तो उसके बाद क्या हुआ, ऑफलाइन मार्केट टोटल खत्म हो गई। सो ऑफलाइन मार्केट खत्म होने के बाद आपका बिजनेस जीरो हो गया। तो उस टाइम पे एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक कोई अपॉर्चुनिटी अगर नहीं भी मिलती तो उस टाइम पे भी आप बिजनेस को कैसे बना सकते हो। उसके बाद हमने सारा बिजनेस मॉडल अपना ऑनलाइन लेके आए। ऑनलाइन लाने के बाद उसके बाद अब तो इस तरह से मैं बिजनेस सेटअप कर दिया है कि अगर मैं कुछ काम ना भी करूं तो भी मैं इतनी इनकम जनरेट कर पा रहा हूं जितना मैं ऑफलाइन बिजनेस करके भी नहीं जनरेट कर पा रहा हूं। सो बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले यू नीड टू फाइंड द मार्केट साइज। तो मार्केट साइज जितना बड़ा होगा, जहां पहले मैं सिर्फ एक जलंधर को टारगेट कर रहा था, एक सिटी को टारगेट कर रहा था, नाउ आई एम टारगेटिंग द होल वर्ल्ड। अब मेरे पास मार्जिन साइज बहुत बड़ा है। जो चीज मैं ऑफलाइन में अगर 10,000 की सेल कर रहा था, अगर मैं उसको ऑनलाइन 100 रुपीज की भी सेल करूंगा, स्टिल मैं उतना प्रॉफिट अर्न कर लूंगा जितना मैं कभी ऑफलाइन में 10,000 की वो प्रोडक्ट सेल करके भी नहीं अर्न कर पाऊंगा, बिकॉज मार्केट साइज बहुत बड़ा है। एंड अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आप बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर कर सकते हो। सो द नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट। आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है। प्रोडक्ट मार्केट फिट क्यों नहीं होता? बिकॉज आपको लगता है कि आप एक आपका प्रोडक्ट आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, यूनिक है, एंड आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, लेकिन कस्टमर आपको सिग्नल दे देता है कि ये प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। कई बार होता है कि हम रेज हो जाते हैं कि हमें अपने इसी प्रोडक्ट के ऊपर रहना है। तो जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होगा तब तक आपके उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। सो इसको भी डिटेल में देखेंगे एक्चुअल में प्रोडक्ट मार्केट फिट होता क्या है। द सेकंड इज फेल टू अडैप्ट एंड इनोवेट। सो अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हो तो या कोई नई इनोवेशन नहीं लेके आओगे तो आपका प्रोडक्ट जो है फेल हो जाएगा। ऑर्कुट इसी वजह से बंद हुई थी, उसमें कोई अपडेट ही नहीं कर रहे थे। सेम चीज जो पहले चल रही थी उसके बाद भी वो सेम चीज 2 साल 3 साल बाद कोई अपडेट नहीं, वही स्क्रैप बुक चल रही थी, वही सब कुछ चल रहा था, एंड ऑर्कुट टोटली शट डाउन हो गई। तो आज के टाइम पे फेसबुक, व्हाट्सएप
इंस्टाग्राम, ये कंटिन्यूसली अपडेट लेके आ रहे हैं। तो अगर जिस दिन ये अपडेट ले आना बंद कर देंगे, कोई नई ऐप लेके आ जाएगा सेम फीचर्स के साथ, उसमें कुछ एडवांस फीचर्स लेके आ जाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएंगी। तो आपको आप टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, यू नीड टू इनोवेट समथिंग सो दैट यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट। सो नेक्स्ट इज you need to define any adequate market strategy। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत सेट होनी चाहिए। So the next we will see what is the real entrepreneurship. So most of the entrepreneurs, they think that they are entrepreneurs, but they are not the real entrepreneurs. Real entrepreneurship is not come from, you can say, like if you're studied in a very good college, you are doing MBA or you're doing any management or any business studies you are studying. So किताबें पढ़ के या पढ़ा के कभी किसी ने बिजनेस खड़ा नहीं किया है। अगर किताबें पढ़ के या पढ़ा के अगर आप ये मान सकते हो कि आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो, तो वो आप गलत हो। आज के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं जो PhD करके बैठे हैं या बहुत सारी थीसिस उन्होंने लिखी हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं, आज भी स्टिल वो कॉलेज में एक जॉब कर रहे हैं। आज भी उनमें ये नहीं है कि वो एक बिजनेस स्टार्ट कर सके। आपको बिजनेस के लेक्चर्स जरूर देते हैं कि बिजनेस ऐसे ग्रो किया जाता है, बिजनेस में ये होना चाहिए, बिजनेस में होना चाहिए। एक 30,000 50,000 या 1 लाख सैलरी वाला पर्सन आपको कभी नहीं सिखा सकता कि बिजनेस कैसे ग्रो होता है। सो दे डोंट प्रोवाइड यू द फाइनेंशियल एजुकेशन, they can teach you the money management skill, financial educations, but that education will not help you to build a business. तो आपके पास खुद से एक्सपीरियंस होना चाहिए कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है। आपको पैसे से काम करवाना है। एक बार पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर गया, उसके बाद बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हाउ मनी वर्क्स फॉर यू, एंड उसके लिए आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक स्किल सेट एक्वायर करना है। किसी भी एक चीज में अपने आप को इतना एक्सपर्ट बना लो कि आपसे अच्छी वो चीज कोई कर ही नहीं सकता। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे मैं कह रहा हूँ कि आप कोई लेट से आप कोई समोसे क्यों ना बेच रहे हो, तो आप मार्केट में ऐसा समोसा बनाते हो कि आपसे अच्छा समोसा कोई मार्केट में बना ही नहीं सकता। तो कोई भी एक स्किल आपको ऐसे एक्वायर करना है, लाइक नोबडी कैन बीट यू इन दैट पर्टिकुलर स्किल, राइट। सो फर्स्ट स्किल सेट एक्वायर करो, उसके बाद स्किल सेट एक्वायर हो गया, फिर आइडिया के ऊपर काम करो। एक बार आइडिया टेस्ट हो गया एंड उसके बाद बिजनेस आपका ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। सो द नेक्स्ट इज, आपको सबसे पहले मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं कि वो ऑपरेशंस में फंस जाते हैं, राइट। सो सारा काम खुद ही करते हैं। लाइक बहुत भी जितने भी स्टार्टअप्स होंगे, बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं कि HR का काम भी खुद कर रहे होते हैं एंड HR भी खुद ही हैं। उसके बाद आप मेल भी खुद भेज रहे हैं, ऑपरेशंस भी खुद कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैनेज भी खुद कर रहे हैं, वेबसाइट भी खुद बना रहे हैं। तो सारी चीजें वो खुद ही मैनेज कर रहा होता है। सेल्स भी कर रहा है, मार्केटिंग भी देख रहा है और बिजनेस मीटिंग्स भी कर रहा है, मेल भी खुद ही डाल रहा है। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग यही होता है कि आपको कोई काम नहीं करना है, आपका काम है सिर्फ बिजनेस लेके आना। बिजनेस को करवाना आपको अपनी टीम से करवाना है। तो फर्स्ट यू नीड टू पुट योर बिजनेस ऑन ऑटो पायलट। सो बिजनेस ऑटो पायलट पे आएगा तभी बिजनेस ग्रो हो पाएगा। जब तक बिजनेस ऑटो पायलट पे नहीं आएगा, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। आई गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, एक समोसे बनाने वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक समोसे बनाने वाला बंदा रोज लेट से 100 समोसे बनाता है और 10 रुपए का एक उसका समोसा है, ठीक है, तो दिन में वो 1,000 रुपए कमा रहा है, तो महीने के 30,000 रुपए कमाएगा। तो जिस दिन वो बीमार पड़ गया तो उसकी जो 1,000 रुपए की इनकम है वो जीरो हो जाएगी। तो हमें इस चीज में नहीं घूमना। अगर मैं बीमार पड़ गया, अगर मैं पीछे से ऑफिस ना भी जाऊं, तो भी मेरा काम होना चाहिए। सो एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे पहली जो थिंकिंग है वो ये होना चाहिए कि उसको अपने बिजनेस को जितनी जल्दी ऑटो पायलट पे लेके आएगा उतना बेस्ट है। अगर आप ऑफिस ना भी जाओ तो भी आपका बिजनेस चलना चाहिए। तो जितने बड़े ये यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, ये खुद काम थोड़ी कर रहे हैं, इनका बिजनेस ऑटो पायलट पे। आप देख रहे हो कि कभी ये कहाँ घूम रहे हैं, कभी वहां घूम रहे हैं। सो दे हैव बिल्ड देयर बिजनेस ऑन ऑटो पायलट। सो बिजनेस ऑटो पायलट में लाने के लिए फर्स्ट आपको क्या करना होगा, आपको ऑपरेशन से बाहर आना पड़ेगा। आपको जो काम आप खुद कर रहे थे, आपको उसके लिए
कोई और ढूंढना पड़ेगा, राइट? सो टू बी अ स्ट्रॉन्ग लीडर यू हैव टू हायर पीपल हु इज स्मार्टर देन यू, राइट? ताकि आपको हमेशा वो बंदा ढूंढना है ताकि जो काम आप कर रहे हो वो आपका काम कर ले, ताकि आप कोई और काम कर लो, राइट? सो अगर आप इस तरह से चलोगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट पे आ जाएगा। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को ये मानना होता है कि मेरे से अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता। जब तक आपकी माइंड में ये रहेगा कि आपसे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, आप हमेशा ऑपरेशंस में फंसे रहोगे। आपको किसी को मेल डालनी है, हो सकता है कि वो इतनी प्रोफेशनल मेल ना लिख सके, तो आप क्या करोगे कि उसको बोलोगे ही नहीं कि ये कहाँ लिख पाएगा। आपने उसको कभी ट्राई भी नहीं किया करने के लिए कि यस कि आप एक प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल लिख दो, तो उससे आप ऑपरेशंस में फंसे रहे हो। आप चाहते हो कि अगर मैं सेल्स पिच करूंगा या मैं किसी सेल्स पर्सन को भेजूंगा, वो सेल नहीं निकाल पाएगा, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो आपको लगता है कि मैं सेल निकाल लूंगा। तो आप सारा काम तो खुद कर रहे हो। तो आप ऑपरेशंस से जब तक बाहर नहीं आओगे तब तक आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे नहीं चलेगा। तो वही अगर बात करें कि अगर वो समोसे बनाने वाला हर दिन अगर कुछ पैसे सेव कर लेता, कि अगर 1,000 रुपए महीने का कमा रहा था उसमें से कुछ पैसे सेव कर लेता और एक समोसे बनाने वाली एक मशीन ले लेता, राइट? तो उससे क्या होता कि जब वो बीमार होता तो मशीन उसके लिए काम करती। तो हमें भी अपने बिजनेस को ऐसे ही ऑटो पायलट पे लेके जाना है। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को एंटरप्रेन्योर्स तो मानते हैं, लेकिन वो रियल एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। मैं एग्जांपल लूंगा, लेट से एक लॉयर की। अब लॉयर कहता है कि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं किसी के अंडर वर्क नहीं करता हूँ, मेरा जब मन करता है मैं केस लड़ता हूँ, और लेट से जितने केस मैं लड़ूंगा उतने पैसे बनेंगे। तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो आप एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो। आप जितने केस लड़ोगे आप उतने पैसे कमाओगे। एक डॉक्टर उतने ही पैसे कमाएगा जितने वो पेशेंट देखेगा। सो एक सीए उतने ही पैसे कमाएगा जितने वो रिटर्न्स फाइल करेगा। तो इनको मैं एंटरप्रेन्योर नहीं मानता, ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो सीए है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लॉयर है, क्योंकि ये उतने ही पैसे कमाएंगे जितना ये काम करेगा। अगर मैं काम नहीं भी करूं तो भी पैसा मेरे लिए काम करना चाहिए, राइट? सो इफ यू कांट मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो पैसे से आपको काम करवाना है, तो वो भी देखेंगे ऐसे कौन कौन सी ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट के साथ साथ उसको प्योरली ऐसे मोड पे लेके आ जाओगे कि आपके लिए वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। सो फर्स्ट यू नीड टू गेट आउट फ्रॉम द ऑपरेशंस and don't be a self-employed. You need to become a real entrepreneur, and real entrepreneur will not do all the things alone. So you need to put your business first on autopilot, and you have to hire a person who is more intelligent than you. So next is your product a market fit. You are thinking that your product is very new, your product is very good, and your product is totally unique. Like आपका प्रोडक्ट नया है, अच्छा है, यूनिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है। तो सबसे पहले यू नीड टू डू द नाइस एनालिसिस ऑफ योर प्रोडक्ट। यू नीड टू फाइंड द नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ योर प्रोडक्ट। तो जब तक आप अपने प्रोडक्ट की नाइस एनालिसिस नहीं करोगे कि उस प्रोडक्ट की, आपको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत नया है, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक है, लेकिन उस प्रोडक्ट की अगर मार्केट को जरूरत ही नहीं है तो वो प्रोडक्ट आपके किसी काम का नहीं है। तो हमें लग रहा है कि हमारा प्रोडक्ट एकदम नया है, अभी तक मार्केट में कोई आया भी नहीं है। तो शार्क टैंक में भी ऐसे आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे कि वो प्रोडक्ट उसने देखा कि मार्केट में तो है ही नहीं, बहुत नया है, ठीक है, अच्छा है और एकदम यूनिक भी है, लेकिन आज भी वो बिजनेस टोटली बंद हो चुके हैं और उनकी सेल्स आज भी उतनी ही जीरो पड़ी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि योर प्रोडक्ट इज न्यू, योर प्रोडक्ट इज गुड, योर प्रोडक्ट इज यूनिक। सो पहले ये देखना है उस प्रोडक्ट की मार्केट को नीड भी है या नहीं है, लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा भी रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। जिस दिन लोग आपके प्रोडक्ट को एडवांस में पे करने के लिए रेडी हो जाए तो समझ लेना आपके प्रोडक्ट में दम है। अगर आपके प्रोडक्ट को लोग एडवांस में खरीदने के लिए नहीं है, या कोई एडवांस में थोड़ी बुकिंग अमाउंट दे दे कि यस जब भी प्रोडक्ट आएगा हम उसको बाय कर लेंगे, राइट? तो जैसे ही ओला की ये इलेक्ट्रिक आई थी, बहुत सारे लोगों ने एडवांस में 500 के अराउंड पे करना स्टार्ट कर दिया था। तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की नीड है पहले या नहीं है। अगर नीड है तो लोग आपको एडवांस में पे करने के लिए रेडी हैं, आर दे रेडी टू पे यू इन एडवांस, या आपको लेटर ऑफ इंटेंट देने के लिए रेडी है कि हम आज नहीं लेकिन फ्यूचर में आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। तो अगर ये चीज है दैट मींस आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, राइट? सो
डोंट सेल द प्रॉब्लम, सेल द सॉल्यूशन। तो आपको प्रॉब्लम नहीं बेचनी है, आपको उसका सॉल्यूशन बेचना है। सो द नेक्स्ट इज इंक्रीज योर पर्सनल ग्रोथ। तो हमेशा यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल हु आर स्मार्टर देन यू। कभी ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो जो लोग आपसे कम पढ़े लिखे हैं या आपसे लेस इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि जब आप एक ऐसे ग्रुप में बैठोगे जहां पे लोग आपसे कम पढ़े लिखे हैं, उसमें से आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो सब मेरे को आता है, और आप वहां पे अपना अपना ज्ञान दे रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ठीक है, आप उन लोगों को के ग्रुप में आपको लगेगा कि हाँ लोग मेरे लिए बहुत मान रहे हैं कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है, हम इस बंदे के साथ बैठते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी ग्रोथ वहां पे कम होगी। हमेशा आपको उन बंदों के साथ बैठना है जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो आपसे ज्यादा जिनका सक्सेस रेट आपसे ज्यादा है। तो हमेशा उन लोगों के साथ बैठो जिनका सक्सेस रेट आपसे ज्यादा है। डोंट सिट विद द पीपल हु आर लेस सक्सेसफुल देन यू। जो आपसे ज्यादा पैसे कमा रहे हो, जिनका सक्सेस रेट ज्यादा है, उन लोगों के साथ हमेशा बैठो, क्योंकि जब आप उन लोगों के साथ बैठोगे आपको एक मेंटरशिप मिलेगी, आपकी वहां पे स्किल्स एनहांस होंगे, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, वो आपको गाइड करेंगे। सो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ को इंक्रीज करना है। सो नेक्स्ट इज, आर यू अपडेटिंग योरसेल्फ? सो मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं, जैसे लाला टाइप बिजनेस होते हैं, तो उनका माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल है। वो आज भी उसी टेक्नोलॉजी पे बैठे हैं जिस टेक्नोलॉजी पे आज पे वो 10 साल पहले बैठे थे। जिससे 10 साल पहले अगर उनका 1 ईयर का रेवेन्यू था, आज 10 साल बाद भी अगर उनका 1 ईयर का रेवेन्यू है, तो वो कोई ग्रोथ नहीं है, बिकॉज वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। आज भी उसी टेक्नोलॉजी पे, उसी स्किल्स को, उसी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस जो है वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो आप मार्केट से बहुत जल्दी पीछे चले जाओगे। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो आपको आ रही है, आपको अगर ये आपकी फेसबुक या इंस्टाग्राम या जितनी भी एक एप्स हैं या कंपनीज हैं, अगर ये कुछ नए फीचर्स नहीं लाएंगे तो हम बोर हो जाएंगे, तो हम भी उनको यूज करना बंद कर देंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है कि अगर मार्केट में ये नई चीज चल रही है तो जल्दी से अडाप्ट करो, हमको भी उसी फीचर में जाना है। ये नहीं होता कि आप कई बार फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिलती है, लेकिन फर्स्ट मूवर से ज्यादा फास्ट मूवर वाला एडवांटेज ज्यादा ले जाता है। जैसे पेटीएम क्यूआर कोड लेके आया था, लेकिन भारत पे ने क्या किया कि वो पेटीएम फर्स्ट मूवर था, उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली, वो क्यूआर कोड लेके आया, लेकिन भारत पे फास्ट मूवर था, उसने क्या किया कि किसी भी क्यूआर से उसकी पेमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो आपको फास्ट मूवर बनना है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलती है, बट इतनी एडवांटेज नहीं मिल पाती। अगर फास्ट मूवर हो तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी आप भूल जाओगे। तो आपको अपने आप को अपडेट करना है। आपका फोन हर 3 महीने 4 महीने बाद अपडेट करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अपडेट देता है। अगर आपका फोन अपडेट हो सकता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो सकते हैं, तो आप अपने आप को अपडेट क्यों नहीं करोगे? फोन की तो वैल्यू भी बहुत कम है, बट आपकी तो वैल्यू ही इतनी ज्यादा है। तो अगर फोन अपने आप को अपडेट कर सकते हैं तो हम अपने आप को अपडेट क्यों नहीं कर सकते? सो नेक्स्ट, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप स्टिल एक बिजनेस को रन करना चाहते हो, तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी हैं जो एसेट लाइट मॉडल के ऊपर काम करते हैं। सो बिजनेस के लिए आपके पास पैसा नहीं है, मैन पावर नहीं है, और बट आपके पास स्किल्स हैं, तो आप एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल रन कर सकते हो। जैसे ओला एंड उबर। ओला एंड उबर की एक भी टैक्सी अपनी नहीं है, अमेजोन का एक भी प्रोडक्ट अपना नहीं है, ओयो का एक भी होटल अपना नहीं है, जोमेटो का एक भी रेस्टोरेंट अपना नहीं है, व्हाट्सएप का एक भी सर्वर अपना नहीं है। हमारे फोन को ही वो एज ए यूज करता है सर्वर की तरह, हमारे फोन में डेटा स्टोर होता है, हमारे फोन में ही डेटा एज ए सर्वर यूज होकर दूसरे फोन में ट्रांसफर होता है। तो ये बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो एसेट लाइट मॉडल के ऊपर काम करते हैं। पैसा किसी और का, प्रोडक्ट किसी और का, लेकिन पैसा बनेगा आपका। So next is, what does it mean to make your money work for you? So ये मैं अभी भी बात कर चुका था पहले कि आपको पैसे से काम करवाना है, आपको खुद काम नहीं करना, पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। So if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Like मैंने एग्जांपल दी, सीए, लॉयर,
एंड ये जितने भी डॉक्टर्स हैं ये उतने ही पैसे कमाते हैं जितना ये पेशेंट देखेंगे, जितना ये काम करेंगे। लाइक एक रियल एंटरप्रेन्योर वो होता है जब वो सो रहा होता है तब भी उसका पैसा बनता है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। आप देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो सोते हुए भी पैसे कमाते हैं। मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, मैं सो रहा होता हूँ, सुबह उठता हूँ, $50 $100 दिन के बन रहे हैं। मतलब सोते सोते भी आपका पैसा बन रहा है। लोग आपका कंटेंट कोई दिन में कंज्यूम कर रहा है, कोई रात में कंज्यूम कर रहा है, तो वहां पे एड्स के थ्रू आपको पैसे आ रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जहाँ पे पैसा आपके लिए काम करता है। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट की, एक बार आपने कंटेंट डाला, आप चाहे वो यूट्यूब पे डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, फेसबुक पे डाल रहे हो, या आप एक ब्लॉगर हो, ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, या किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो ये वो है जहाँ पे आपको सोते हुए भी पैसा मिलेगा। सेकंड, आप अगर कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जहाँ पे ये चीज हो, तो आप एक अगर आपके पास पैसा है तो आप एक प्रॉपर्टी रेंट पे दे सकते हो, तो वो भी आपके लिए सोते हुए पैसा कमाएगी। एंड आप एक कोई ऑनलाइन कोर्स डिजाइन कर सकते हो, उस ऑनलाइन कोर्स को आप सेल कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो कोई कोर्स आपका कभी भी बाय कर सकता है, कोई रात को बाय कर रहा है कब, तो आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। एक बार आपने बना के छोड़ दिया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे, आपका कोर्स ऑटोमेटिकली सेल होता जा रहा है। सो पैसे से आपको काम करवाना है, आपको खुद काम नहीं करना। So this is all about how the entrepreneur thinks and how the entrepreneurs works. And if you have any questions, you can ask. I have given you all the details, how actually the entrepreneurship is, what is the real entrepreneurship, and who thinks they are entrepreneurs, but actually they are not entrepreneurs, they are self-employed. So these all are the things which you need to taken care of in your mind, that how the businesses runs and what are the key challenges, and how why the business not grows due to lack of product market fit, market size is wrong, and you don't have any skill sets, you have a wrong team. So there are many reasons, right? So you need to work on your skills one by one, and definitely your business will grow. So if you have any questions, you can ask. So as an entrepreneur, you can, how you will motivate your team, and how you can get your work better. Because like if you are dependent on a team, so first thing is that you need to upgrade yourself. Like what will happen sometime, आपका एम्प्लॉय आपके ऊपर भारी हो जाता है बिकॉज आपको वो चीज नहीं पता है। अगर आपको वो चीज नहीं पता है तो आपको वो कभी भी छोड़ के, जिस दिन वो आपको छोड़ के चला गया, आपको लगेगा कि आपका बिजनेस उसके बिना चलेगा ही नहीं। तो हमेशा आपको वो देखना है कि अगर आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है जो एम्प्लॉय आपका काम कर रहा है, तो जिस दिन वो छोड़ के चला गया आपका बिजनेस बंद हो सकता है। तो कभी भी 100% एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको अपने आप को भी अपडेट करना है। अगर एक दो दिन के लिए वो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है तो स्टिल बैकएंड में आप उस चीज को मैनेज कर सको। ओके, द प्रायोरिटी इज लाइक, तीनों ही चीजें प्रायोरिटी में होती हैं, बिकॉज किसी एक चीज
से बिजनेस नहीं चलता है। अगर फाउंडर्स में दम नहीं है तो भी बिजनेस ग्रो नहीं होगा। आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन प्रोडक्ट को मार्केट करना नहीं आया तो भी बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। मेरे पास ऐसे भी पर्सन्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए। जहां से ममा अर्थ प्रोडक्ट बनवाती है वहीं से उन्होंने प्रोडक्ट बिल्ड करवाया। अगर वो एक प्रोडक्ट लेट से ममा अर्थ का 300-400 का है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 30 to 40 रुपीज है। तो उससे बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए। तो उनको ये लग रहा था हम प्रोडक्ट हमने इनसे भी अच्छे बना लिए, लेकिन जब तक आपको प्रोडक्ट को मार्केट करना नहीं आएगा आपका प्रोडक्ट जीरो है। कई बार बेकार प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि वो आपका प्रोडक्ट हिट हो जाता है। उसके बाद टाइम टू टाइम यू कैन अपडेट योर प्रोडक्ट, उसमें से चेंजेस ला लेके आ सकते हो। जैसे प्रोडक्ट फीडबैक दे रहा है, कस्टमर फीडबैक दे रहा है, प्रोडक्ट को चेंज करते जाओ। तो अगर फाउंडर में दम नहीं है तो पहली बात तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। फाउंडर में दम है तो डेफिनेटली उसको पता होगा कि ये जो प्रोडक्ट है, क्योंकि फाउंडर के पास वो पूरा माइंडसेट होगा। एक एंटरप्रेन्योर के पास वो माइंडसेट है कि ये जो प्रोडक्ट जो वो बनाने जा रहा है उसने प्रॉपर प्रोडक्ट मार्केट रिसर्च की होगी, प्रोडक्ट की नीड क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो फर्स्ट इज अ गुड फाउंडर। फाउंडर में दम होगा तो प्रोडक्ट अपने आप चल जाएगा। सेकंड डेफिनेटली द मार्केट साइज, उसके बाद ये बाकी के पैरामीटर्स आते हैं। सो फर्स्ट इज द फाउंडर। ये ना हो कि आप एक फाउंडर आप हो, एक आपके साथ को फाउंडर है एंड सारा काम आप ही कर रहे हो, आपका को फाउंडर कुछ काम नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे फिर आने लग जाता है कि सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ। अभी तो चलो बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, पैसे लग रहे हैं, लेकिन जिस दिन पैसा आना शुरू हो जाएगा फिर आपको लगता है कि मेहनत सारी मेरी थी, काम उसने कुछ किया नहीं, स्टिल मेरे को 50% उसको इक्विटी देनी पड़ रही है, पैसे देने पड़ रहे हैं। तो उस टाइम पे फाउंडर इज मस्ट। तो कोई ऐसा फाउंडर हो ताकि जो इक्विवेलेंट आपके काम करे। So, should an entrepreneur to try to expand in different cities online or to try and open satellite or branch office to gain the local presence? So, अगर आपको local presence build करनी है तो definitely you have to open a local store because जो अगर it depends upon city to city and you can say state to state also। अगर हम पंजाब रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर किसी लोकल वेंडर से कुछ करवाना है या लेट से मेरे को अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो उसका ट्रस्ट नहीं बनेगा जब तक वो वहाँ पे विजिट नहीं करेगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम किसी बैंगलोर साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे लोकल जाने की बजाय वो ऑनलाइन प्रेफर करेगा। उसके पास उतना भी टाइम नहीं है कि वो यहाँ से चल के उस स्टोर तक जाए और उससे बात करे और उसके बाद प्रोडक्ट उससे डेवलप करवाए। तो डिपेंड्स अपॉन सिटी टू सिटी, यस ये चीजें फर्क पड़ती हैं। एंड इफ यू वांट टू एक्सपेंड और इफ यू वांट टू एक्सपेंड ग्लोबली एंड वांट टू गेट मोर क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड थ्रू सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू काफी बिजनेसेस खींचे जा सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया हुआ है, लेट से आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाने में एक्सपर्ट हो, आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी उस ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए। एक बार आपने पूरा फनल रेडी कर लिया, लेट से एक बार फनल रेडी करने के लिए आपको 1 लाख की कॉस्ट आती है। उसके बाद वो सेम चीज बनी है। अब उस सेम चीज जो आपने बनाई है, अब अगर आप वही चीज दूसरे बंदे को देते हो, जस्ट उसका आप लोगो चेंज कर रहे हो, प्रोडक्ट चेंज कर रहे हो, उसमें आपको अगर उससे टाइम आधे से भी आधा लग रहा है तो आपकी कॉस्ट बहुत कम होगी। तो उस कॉस्ट पे आप खेल सकते हो और उस पे आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट या कहीं पे भी एड्स रन करके एक अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारी एडवर्टीजमेंट ऐसी भी आती है कि 5,000 में आप ई कॉमर्स साइट बनवा लो या 10,000 में ई कॉमर्स वेबसाइट बनवा लो, क्योंकि उन्होंने अपने फनल्स रेडी किए हैं। तो जितने वो ज्यादा क्लाइंट्स करेंगे उतना वो एक्सपेंड होते जाएंगे। वही चीज अगर मैं किसी लोकल के पास जा रहा हूँ, उसने फर्स्ट टाइम स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए 10,000 में वो चीज बनानी बहुत मुश्किल है। बिकॉज बहुत सारे बिजनेस में क्या होता है, लोगों को प्राइसिंग करनी नहीं आती। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों को अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी नहीं आती। प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना बहुत ईजी है। लेट से आप एक वेब डेवलपर हो फॉर एग्जाम्पल, आपको उस वेबसाइट को बनाने के लिए 2 डेवलपर्स की कॉस्ट लग रही है। आपकी उस वेबसाइट को 2 डेवलपर बना रहे हैं, दोनों डेवलपर लेट से 15,000 की सैलरी ले रहे हैं।
तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको 1 मंथ का टाइम लगा। 1 मंथ टाइम लगा उस वेबसाइट को बनाने में। 15,000 आपकी सैलरी ले रहे थे 2 डेवलपर, तो 30,000 आपकी ये कॉस्ट होगी। जब 30,000 आपको ये नेट कॉस्ट लग रही है, आपको क्या करना है, उस कॉस्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप क्लाइंट से 90,000 और 1 लाख के अराउंड चार्ज करोगे, बिकॉज उसमें आपकी डेवलपर की कॉस्ट, आपकी रेंट की कॉस्ट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट ऐड हो जाती है। तो फर्स्ट टाइम अगर वो बनाने में आपको 1 लाख की कॉस्ट आ रही है, सेकंड टाइम मेरे को पता है कि ये वेबसाइट अगर कोई दूसरा क्लाइंट आ जाएगा, सेम वेबसाइट अगर वो लेने आ रहा है, मैं इसको 3 दिन में रेडी करके दे दूंगा। तो अब उस 3 दिन के अंदर उसकी नेट कॉस्ट कितनी आ गई, 3,000। तो 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 और 10,000। तो वही प्रोडक्ट जो आप 1 लाख में बेच रहे थे, अब वो प्रोडक्ट आप अपना 10,000 में सेल कर सकते हो। तो इस तरह से मार्केट को नीचे लेके आया जाता है एंड उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेशन की जाती है। एंड वही चीज कोई कंपनी 10,000 में भी दे रही है, कोई 20,000 में भी दे रही है, कोई 50,000 में भी दे रही है। सो उनके पास वो चीजें ऑलरेडी, उन्होंने अपना सिस्टम बिल्ड करके रखा हुआ है, सारी चीजें उनके पास रेडी हैं। तो वहां से प्राइस जो है वो वेरी करता है। लेकिन अगर आप स्क्रैच से किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना चाहते हो, ये तो मैंने वेब की एग्जांपल दी है, बट अगर आप कोई एक्चुअल में कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइसिंग ऐसी करोगे, उस प्रोडक्ट की जितनी भी आपको एक्चुअल कॉस्ट कर रही है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो, वो आपका होलसेल प्राइस निकल जाएगा। उसको आप 3 या 4 से मल्टीप्लाई करोगे, वो आपका रिटेल प्राइस निकलेगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट की प्राइसिंग की जाती है। एनीथिंग एल्स? ओके, फाइन। I guess that's all. ये We have got one more question, I guess. We have got one more question from Mr. Amit. How do you handle clients who negotiate a lot? ओके। सो जो क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करते हैं, हम उनकी प्राइसिंग पहले ही डबल रखते हैं। तो क्लाइंट फर्स्ट टाइम आपसे डील करेगा, आपको पता चल जाएगा कि क्लाइंट की नेचर क्या है। सेकंड टाइम अगर वही क्लाइंट आ रहा है तो डेफिनेटली आप उसका जो प्राइस है वो उससे ज़्यादा ही बताओगे। सो ये नहीं कि हर क्लाइंट आपसे नेगोशिएट करेगा, बट ये एक क्लाइंट का माइंड ऐसा होता है कि उसको नेगोशिएट करना ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, अगर एक प्रोडक्ट आप 100 रुपीज का दे रहे हो और उसमें 125 रुपीज शिपिंग लगा रहे हो, तो 125 का आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो। वही प्रोडक्ट आप 150 में सेल कर रहे हो, लेकिन नीचे लिखा हुआ है फ्री शिपिंग। तो हमेशा हम फ्री शिपिंग वाले प्रोडक्ट के ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे, कभी भी हम शिपिंग पे नहीं करेंगे। तो इंडियन माइंडसेट ऐसा है कि वो 125 का जो विद शिपिंग मिल रहा था 125 में, वो हम बाय नहीं करते, हम 150 वाला प्रोडक्ट बाय कर लेंगे जहाँ पे फ्री शिपिंग थी। दूसरा, एक तो फ्री शिपिंग चाहिए, दूसरा उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है, तीसरा उसके साथ आप फ्री क्या दे रहे हो। अगर ये 3 चीजें आपने अपनी एडवर्टीजमेंट में लगा दी कि डिस्काउंट, सेकंड उसके साथ एक्स्ट्रा आप फ्री क्या दे रहे हो, डिस्काउंट तो है ही है लेकिन साथ में फ्री क्या दे रहे हो, तो आप बहुत जल्दी, क्योंकि ये ऐसी एड्स होती हैं जहाँ पे प्रोडक्ट पे वो क्लिक करेगा ही करेगा। जैसे माई ग्लैम क्या करता है, वो 1 रुपीज में लिपस्टिक सेल कर रहा है, लेकिन 1 रुपी नहीं है, वो 198 आगे जाके शिपिंग ले लेता है, लेकिन एक बार तो क्लाइंट क्लिक कर ही देता है, राइट। तो उस तरह से प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है। ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं कि हम किस तरह से एक्चुअल में कस्टमर को अपनी साइड पे लेके आए। अगर एक बार वो प्रोडक्ट बाय कर लेता है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में दम होगा तो कस्टमर रिपीटेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। प्रोडक्ट में दम नहीं है तो कस्टमर कभी भी रिपीट नहीं करेगा। अब सेम चीज, एक नेल आर्टिस्ट थी, तो उसको कोर्स बेचना ही 15,000 का था। तो हमने उसके कोर्स की एक्चुअल प्राइस रखी 70,000, उसके ऊपर डिस्काउंट किया लेट से 70,000 के अराउंड, उसको हम एक्चुअल में 15,000 पे लेके आए। उसके बाद हमने उसको फ्री प्रोडक्ट्स दिए 5,000 के, या कुछ ऐसी सर्विसेज दे दी जिसको हमने दे दिया कि ये एक्चुअल में हमारी एक्चुअल कॉस्ट नहीं है,
हम उसमें लेट से उसको नेल आर्टिस्ट के साथ उसको 5,000 की हम अपनी मास्टर क्लास दे रहे हैं कि आपको अपना इंस्टाग्राम कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट्स कैसे हैंडल करने हैं, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है। तो वो हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा, तो फ्री वाली चीज के ऊपर लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वही जो चीज 10,000 की सेल नहीं हो रही थी, जब उसने एग्जैक्ट 10,000 का कोर्स लगाया, वो कोई ले नहीं रहा था। वही जब हमने उसको 70,000 काट के 15,000 पे लेके आए, प्लस उसमें 5,000 हम उसको प्रोडक्ट भी कुछ ऐसा फ्री दे रहे हैं, तो वही 10,000 वाला कोर्स हम 15,000 में उसका बेच रहे हैं। तो इंडियन माइंडसेट ये है कि उसको डिस्काउंट चाहिए, प्लस उसको फ्री में और चीज क्या मिल रही है, वो जो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। डन। Is that all? Anybody has any other questions? I guess that's all. I guess that's all. So Yep. thank you so much, Karan sir. Thank you so much for sharing all your accumulated knowledge and sharing your words of wisdom and everything. And yes, the examples that you have provided while sharing your presentation and everything were so apt. Especially the one where you said that you're basically known by the company you keep. We have always been hearing that कि लाइफ अपने जैसे लोगों के साथ बैठो, आपके Right. उठने बैठने से पता लगता है कि what is your thought process and everything. So Right. yes, all those things were really apt. Thank you so much for sharing all these wonderful things with us. Thank you so much for taking out time for us from your busy schedule. Thank you so much for that. And thank you, everyone present in the audience. Thank you so much for joining us, coming on board, and becoming a part of our webinar and making it a success. Thank you so much, everyone. Thank you. Welcome. Okay. Thank you. Good day.